अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वबा को काबू करने में नाकाम, मरीजों को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हर असम्बली हल्के में आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम का मुतालबा, तेलंगाना कांग्रेस ने मंजूर की कई करारदादें। बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए वबा के दौरान सख्त फैसले लेने होंगे। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने ऑनलाइन चोटी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। विजयवाड़ा में कायम किए गए कोरोना केयर सेंटर में आतिशज़दगी, 10 से ज़ायद अफराद झुलस कर फौत। महलूकिन के विरसा को 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का वज़ीर आला जगन ने किया ऐलान। ममनुआ सिगरेट्स की फरोख्त के सिलसिले में एक शख्स गिरफ्तार, 16 लाख रुपये मालियती सिगरेट्स किए गए जब्त। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। आजमपुर में एक मुश्तबा राउडी शीटर पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ चादरघाट पुलिस ने केस किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज़ KT रामाराव ने कहा है कि मुल्क व रियासत में बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इस्लाहात और नई पॉलिसियों को अपनाना ज़रूरी है। रियासती वज़ीर KTR ऑनलाइन समिट इंडिया एट 75 से खिताब कर रहे थे, जिसका इनेकाद CII की जानिब से किया गया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि वबा के इस दौर में ज़रूरत इस बात की है कि बैरूनी सरमाए को मुल्क में लाने के लिए सख्त फ़ैसलों को लेना पड़ेगा। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का भी तज़किरा किया। And we are privileged to have with us Mr. Rama Rao, the Honorable Minister of IT, Industries, MANUD, State of Telangana. Thank you, sir, for being with us today. This is a subject which I think becomes extremely important in normal times. And I think the last 3 months has demonstrated to us the importance of technology, how it can disrupt our lives, how it can make our lives better. But like it or hate it, I think there's no avoiding it. And I think that's very clear to organizations, that's clear to us as individuals, and that's certainly clear to government as well. And I think the platforms such as these are also manifestations of how technology can be used to make more efficient use of time, more efficient use of resources, more efficient use of space. So thank you very much for joining us. Thank you so much. Very good afternoon to all of you. Thank you to the Confederation of Indian Industry for being a guiding light for many governments, for being the champion of, champion and advocate for policy changes and reforms. In many ways, Confederation of Indian Industry has been partnering with us on several of the reforms that we have been able to successfully bring out in our own state, and I think also that we've been able to highlight to Government of India as well in terms of ensuring that India gets its rightful place in the global manufacturing and global industrial expansion scenario. Now, today's topic on reinventing technology in India and combining the best of local and global talent and innovation and capital is what I've been asked to speak on. Firstly, I'm a strong, very, very strong believer that, if for India really has, because, your topic is on India at 75. In fact, Honorable Prime Minister had convened a meeting June last year on the exact same topic. He had said, how does Naya Bharat banane ke liye, like new India, if we have to really reimagine India, and if we really have to think out of the box, what are the things we ought to be doing is what Honorable Prime Minister asked us. I've been a firm believer in the 3I mantra. Innovation, infrastructure, and inclusiveness is what is really going to make new India. Really, that is what I've always believed in, and that is what I've always advocated. And I believe for India really to reach and for India really to actually claim its rightful position in the world, there is no substitute for this mantra. The reason why I say this, Government of India recently, as we all know, after the skirmishes on the India-China border, had banned about 59 apps, digital apps belonging to various Chinese companies, to be allowed in our country. One of the things that I saw
I'm very active on social media. One of the responses I saw from China, and one of the things I think which many of us also, including Anand Mahindra ji, saw and responded to was a Chinese national, who heads a large leading public newspaper out there, had tweeted saying, when India banned all these Chinese apps, we also said, let's ban some Indian products. And we looked around in China. Unfortunately, we could not find any. And he said, mere nationalism doesn't make you a great country, India. You better buck up and do something, that you truly are worth, truly are proud of. If that is not a clarion call, if that is not provocation enough for CII and the rest of us in India, I don't know what would be. So the point I'm trying to make, sir, is I think we are known as a great nation which offers fantastic services. We take a lot of pride in Sundar Pichai. We take a lot of pride in Satya. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोविड की रोकथाम के लिए वाइन शॉप्स और बेल्ट शॉप्स को बंद किया जाए। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें कई करारदादें पेश की गई। बादशाह कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कोरोना की वबा को काबू में करने के सिलसिले में हुकूमत गैर संजीदा है। दवाखानों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अलावा दवाओं की किल्लत है और कोविड मरीजों को उनकी किस्मत के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खानगी हॉस्पिटल्स के रवैये का मुआयना करने की गर्ज से एक मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जाए ताकि हर असेंबली हल्के में एक आइसोलेशन सेंटर कायम किया जाए। उन्होंने बताया कि इजलास में कृष्णा वाटर के मसले पर भी करारदादें मंजूर की गईं। అత్యంత భయంకరంగా ఉంది ఈరోజు కేసులు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి। ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏ గ్రామం పడితే ఆ గ్రామానికి విస్తరిస్తూ ఉంది। కావాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు ప్రభుత్వ పక్షాల నుంచి అందుబాటులోకి రావట్లేదు। ఆసుపత్రి వర్గాలకు సంబంధించి కావాల్సిన స్టాఫ్ లేదు। ఇతరత్రా కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ప్రజలకు అందట్లేదు। ప్రభుత్వ పరంగా కేవలం మాటలకే పరిమితం అవుతుంది తప్ప ప్రజల అవసరాలు తీర్చే పరిస్థితి ఎక్కడ కనపట్లేదు। అందుకే సిఎల్పి చాలా తీవ్రంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ కొన్ని అంశాలను కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొని రావడానికి కొన్ని తీర్మానాలు చేయడం కూడా జరిగింది। అందులో ప్రధానంగా కరోనా కోవిడ్ సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ని ఆరోగ్యశ్రీ కిందకి తీసుకొని రావాలని చెప్పి రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద తీసుకొని రావాలని చెప్పి సిఎల్పి పక్షం నిర్ణయించడమైంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయాలని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున దీని బారిన పడి వైద్యం చేపించుకోలేక ఇంటి ఆదాయాన్ని సంపాదించేటువంటి మనుషులు చనిపోతూ ఉన్నారు। ఇటువంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రజల్ని ఆదుకోవటానికి తప్పనిసరిగా దీన్ని రాజు ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిఎల్పి నిర్ణయించడం। मेयर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन की जानिब से जीएचएमसी हुदूद में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मेयर बी राम मोहन ने बेगमपेट में वाक़ क़ब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि कामों की तकमील के लिए सूरत पैदा की जाए। बी राम मोहन के हमरा रुकन असम्बली एम कृष्णा राव और जीएचएमसी जोनल कमिश्नर एस श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। मेयर ने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए लागती काम 5 एकड़ अराजी पर किया जा रहा है, जिसके दौरान शजरकारी, टॉयलेट्स और बाथरूम्स की तामीर के अलावा अंदरूनी सड़कें और दीगर तामीरी काम किए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद व इंचार्ज हल्के असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने अत्तापुर बड़ी मस्जिद से मुत्तसिल क़ब्रिस्तान का मुआयना किया और बताया कि मज़कूरा क़ब्रिस्तान की वक्फ़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं, लेकिन सदरनशीन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मिर्जा अहमद बेग ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। आज सुबह 9 बजे से लेके अब तक हमने अत्तापुर की कुतुबशाही मस्जिद, बड़ी मस्जिद का सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर साहब जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब और यहाँ मस्जिद कमेटी के सदर साहब और उनकी पूरी कमेटी के लोग मिलकर सब बड़ी मस्जिद का मुआयना किए हैं, जो कि ये मस्जिद के तहत और दरगाह इब्राहिम शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तहत 7 एकड़ 10 गुंठे ज़मीन है, जो कि शहर के बीचों बीच में है और आउटर रिंग रोड के, जो कि पुरानी आउटर रिंग रोड जो अत्तापुर से जाती है, उसके बहुत करीब है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ के काम करी है। सदर मोहतरम हमेशा यहाँ पे जो लोग इल्लीगल जाली पट्टा बनाकर इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़े पर है, वो लोग के लिए भी हर डिपार्टमेंट को मजलिस की नुमाइंदगी, सदर मोहतरम की नुमाइंदगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या GHMC डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, पर वक्त सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने नुमाइंदगी करते हुआ रुका रहे हैं। मगर मुझे यहाँ पर एक चीज़ का अफसोस है, जो कि वक्फ बोर्ड की गज़ीट में ये नोट है कि 7 एकड़ 10 गुंठे ज़मीन है बुध के। तो इस ज़मीन को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड यहाँ पर नाकाम हो चुका है। हम कई चक्रा मारे वक्फ बोर्ड के, कई बार मैं और यहाँ के कमेटी के ज़िम्मेदारान जाकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले। आज तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब यहाँ पर आके विज़िट नहीं करें, ना CO साहब आके विज़िट करें। ये लोग क्यों, क्या है ये मतलब मुझे समझने नहीं आ रहा। वक्फ बोर्ड की जायदाद है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, फिर भी ये लोग खाली खामोशी तमाशाई बने हुए हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पूरी तबाह होते जा रही है। अब आज से 2-4 दिन पहले यहाँ पर एक झोपड़ी डाल दी गई, कब्ज़ा कर लिया गया। उस ताल्लुक़ से भी मैं मायना किया हूँ और इसकी रिपोर्ट भी सदर मोहतरम को दूँगा। और वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से वक्फ बोर्ड के ज़मीन तबाह हो रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड के कोई शख्स का नाम लेना नहीं चाहता। वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं, वक्फ बोर्ड के CO साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि CO साहब आप यहाँ पर आके विज़िट कीजिए। आप लोग यहाँ पर आ रहे नहीं। आपके जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब है क़य्यूम साहब, कई बार हम यहाँ पर बुलाए तो डर के नहीं आ रहे, साहब मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। मुझे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कायम कोरोना केयर सेंटर में आग लगने के बायस 11 अफराद हलाक हो गए, जहां इस होटल को कोरोना सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस विजयवाड़ा B श्रीनिवासलू ने मीडिया को बताया कि 30 अफराद को इस होटल में क्वारंटाइन किया गया था और इनका इलाज जारी था। ताहम आग के हादसे में 30 मरीजों के जुमला 10 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि 18 अफराद को बचाया गया। ताहम उन्होंने 2 अफराद के लापता होने की भी तस्दीक की है। उन्होंने मजीद कहा कि नाशों को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले करने का अमल भी शुरू हो चुका है। वाज़ेह है कि खानगी अस्पताल ने स्वर्णा होटल को किराए पर लिया था और इसे कोविड सेंटर बनाया गया था। इस होटल में कोरोना के 30 मरीज मौजूद थे, जबकि होटल के 10 अरकान भी इस वाक़े के वक्त होटल में ही मौजूद रहे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इतवार की सुबह 5:09 पर होटल में आग लगी, जबकि निस्फ घंटे के अंदर ही फायर अमला यहां पहुंच चुका था और आग लगने की असल वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। COVID patients and government hospital staff were rescued. They were shifted to other private hospitals immediately. There are about right now a minimum of 6 to 7 dead bodies are there inside.
Some of them are critical in the other hospitals. Now we have to count how many diseases are there and all. It will be known in a short while. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा में कायम कोविड सेंटर में हुई आतिशबाजी के मुतवफ़ियान के विरसा को फ़ीकस 50 लाख रुपये गिरशा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि इस बदबख्ताना वाक़े में ज़ख्मी अफराद को बेहतर तिबी सहूलियात पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। बात है कि विजयवाड़ा में एक होटल को कोविड-19 सेंटर में तब्दील किया गया था, जिसमें आतिशबाजी का हादसा पेश आया। आजमपुरा इलाके में एक मुश्तबा रॉडी शीटर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक साजिद नामी शख्स जो जेब कतलों की गैंग चलाता था, उस पर बेरहमाना हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही चारघाट पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ किया गया। यहाँ इस बात का तस्करा बेजा ना होगा कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वबा के दौरान भी हैदराबाद में मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रहीं और पिछले 3 महीनों के दौरान तकरीबन 18 कत्ल की वारदातें पेश आईं, जो सिटी पुलिस के लिए लम्हे फ़िक्र है। दो बच्चों का भाई अब केस लगा क्या? अब देखना क्या करते कि मेरे बच्चे को मालूम है, बड़े बच्चे को। अल्लाह जी मेरे बच्चे को ऐसे क्या बना जाने अगर अल्लाह। मेरे लोगों को मालूम है जी, बाबा मर गया आज 35 साल हो गए। वो बच्चों को पाले जी, पूरे आजमपुरा को मालूम है जी। अल्लाह मेरे अल्लाह आपको कब मालूम मारे बल के बोले सर, मारे बल के बोले सर, गोल मारे नहीं मालूम है, उनके बच्चे नहीं मालूम बल के बोले सर। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने ममनुआ सिगरेट की फ़रोख्त के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से 16 लाख रुपये मालियती ममनुआ सिगरेट्स के पैकेट जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक संदीप सिंह बावेजा साकिन जुमेरात बाजार को हिरासत में लिया गया, जो गैर कानूनी तौर पर ममनुआ सिगरेट्स को भारी कीमतों पर फ़रोख्त करते हुए रुपये बटोर रहा था। बाद अज़ा मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को जब्तशुदा अशिया के हमरा शायनातगंज पुलिस के हवाले किया गया। रिंग रोड राजेंद्र नगर के करीब एक नौजवान पर कातिलाना हमला किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक नदीम नामी शख्स ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि उनके बरादरान निस्बती ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर कातिलाना हमला किया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया गया। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, चिंतलमेट सुलेमान नगर में रहता हूँ मैं। मोहम्मद मेरा साला है। मोहम्मद को मैं कल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बर्थडे की दावत देने के लिए कॉल करा था उसको, तो केक बुक करता हूँ बोल के बोला। 550 में केक बुक करता हूँ, मेरा दोस्त का बेकरी है बोल के बोला। तो मैं चांदनी होटल में जाके उसको 9:30 को कॉल किया, तो इधर की रोड पर बोला। फिर को अचानक उधर जाते कि हमला कर दिए।
आँखों में मिर्ची डाल के मारे और मेरे मामू को भी टाके लगे और महबूब साहब भी आए थे और मेरे को राजेंद्र नगर लोग मिल के मारे आपको? 20-25 जने थे, लेकिन उसमें से एक ही 2-3 जनों का मारे मेरे ऊपर। शफी मोहम्मद रियाज। कुछ वजह? कुछ भी दुश्मनी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अच्छे थे, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा वाइफ मेरे घर में है अभी भी, कोई दुश्मनी नहीं है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने तारीखी मक्का मस्जिद में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए तामीरी कामों पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया और काम को फिलफोर रद्द कर देने की हिदायत जारी की। इस मौके पर मोहतरम मक्का मस्जिद ने मक्का मस्जिद में जारी कामों से उन्हें वाकिफ़ करवाया, जिस पर मजलिसी रुकन असम्बली ने बिलखुसूस पानी के हौज के सिलसिले में जारी तामीरी काम को रोकने और इंजीनियर्स को मुशावरत करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि वो कामों से गैर मुतमईन है और इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद करते हुए ज़रूरी हिदायतें दी जाएंगी। सुराख मारा पूरा मोम कर पिघल जाता पूरा ब्रिक है। अरे हवा कुछ भी रहने दो, हाउस की खूबसूरती खराब हो जा रही हो। कांक्रीट कैरेट की कांक्रीट वाल लगाना था तुम बाजू से, तुमको नाना ही नहीं है। तुम्हारा कोई है? रियासत भर में सरकारी, गैर सरकारी और खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूदा तौर पर 17,884 बेड्स मखलूआ हैं। महकमे सेहत की जानिब से खाली बिस्तरों के सिलसिले में जारी बुलेटिन में ये बात बताई गई। सरकारी दवाखानों में 5,924 खाली बेड हैं, जबकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में 2,596 बेड्स इस वक्त खाली हैं। माबाकी खाली बेड्स खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि पिछले दिनों बेड्स ना हासिल होने पर कई कोविड मरीज़ फौत हुए थे, जिसके बाद हुकूमत ने खाली बिस्तरों के सिलसिले में हेल्थ बुलेटिन जारी करने का फ़ैसला लिया था। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की तरफ से 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाएगा। इस आलमी दिन का मकसद जानवरों से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करना है। इस मौके पर ज़ू पार्क में लाइफ ऑफ लॉयन के मौजू पर नर्सरी से लेकर 5वीं जमात के बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग के मुकाबले मुनक़िद होंगे। इसके अलावा 6वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए दी लॉयन के मौजू पर कहानियों का मुकाबला होगा। ये अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान में होगा। इसके लिए सिर्फ 500 अल्फाज में कहानी लिखनी होगी। तमाम तलबा से ख्वाहिश की गई है कि वो ड्राइंग, पेंटिंग और स्टोरीज़ को PDF फॉर्मेट में तहरीर करते हुए फ़ॉन्ट का साइज़ 12 रखें और उसे अवेयरनेस नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क @gmail.com पर भेज सकते हैं। इनाम याफ्तगान को सर्टिफिकेट्स के साथ इनामात भी दिए जाएंगे। निशान डालाना, इसके अंदर लेके मादे को छोड़े तो वो सूंघते सूंघते इसको ढूंढना शुरू करते हैं। सर इसको ज़्यादा दिख रही ना जी, इसको रहते ज़्यादा। हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कायम किए गए कोविड एंटीजन टेस्टिंग सेंटर्स का मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन और मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स की जानिब से दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स बशमूल मोहम्मद नसीरुद्दीन, M राजेंद्र यादव, अज़ीज़ खान पठान, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, हारून फरहान भी मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में आवाम को टेस्टिंग के लिए तरगीब दे रहे हैं। ताहाल हल्के में 9,500 बस्ती दवाखानों में और 1,750 मोबाइल बस में टेस्ट किए गए हैं। से 12 दिन से लगातार सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और
जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीस साहब की ज़ेर निगरानी हल्के कारवान के अंदर जो आज दुनिया भर के हालात को मद्देनज़र रखते थे, कारवान के अंदर पिछले 10 से 12 दिन से मोबाइल टेस्टिंग की जा रही है, जहाँ पर हल्के के कारवान के तमाम इलाका जात के अंदर, चाहे वो गोलकुंडा हो या गोली चौकी का डिवीज़न हो या नारायणगढ़ हो या कारवान हो या जियागुड़ा हो या गुड्डी मलकापुर हो, यहाँ पर आज लगातार मैं समझता हूँ 10-12 दिन के अंदर 1700 चिल्लर इस मोबाइल टेस्टिंग के ज़रिए 1700 चिल्लर हुए आज तक। और इंशाअल्लाह फिर इसको एक्सटेंड कराने के लिए मैं इंशाअल्लाह कल डायरेक्टर श्रीनिवास साहब से भी नुमाइंदगी करूँगा, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग की वजह से काफ़ी आवाम को सहूलत हुई है। और वैसे तो कारवान के अंदर 5 जगह पर जो बस्ती दवाखाना हो या गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल हो या जो PHU सेंटर हो कुम्मरवाड़ी गोलकुंडा, कारवान के अंदर पन्नीपुरा एरिया हॉस्पिटल और हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाना, इसी तरीके से 5 सेंटर्स चल रहे हैं डेली सुबह से शाम में 2 बजे तक। और इंशाल्लाह और सेंटर्स बढ़ाने के लिए साबिक़ा में भी सदर मोहतरम की हिदायत पर जाकर मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद ये मोबाइल टेस्टिंग को दिया गया था। इंशाल्लाह ये मोबाइल टेस्टिंग की गाड़ी को और एक्सटेंड करने के लिए फिर इंशाल्लाह कल नुमाइंदगी करेंगे इसके ज़रिए, क्योंकि आवाम को काफ़ी सहूलत हो रही है। आवाम के घर के सामने, पब्लिक के घर के सामने या बस्ती के अंदर आकर ठहरी है, उसकी वजह से आवाम को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने अलखजात के अंदर, चाहे वो हकीमपेट के इलाके के हो, अगर हकीमपेट के है तो आप हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने में जाकर कराइए। गोलकुंडे के अंदर बस्ती एरिया हॉस्पिटल के अंदर, गोलकुंडा फतेह दरवाज़ा कुम्मरवाड़ी के अंदर, कारवान के अंदर पन्नीपुरा एरिया हॉस्पिटल और तालागड्डा वहाँ पर हमारे गुंगे की बोली बस्ती दवाखाने के अंदर, इसी तरीके से 5 सेंटर चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो रेगुलर रहेंगे और बस्ती दवाखानों को बढ़ाने के लिए, चाहे वो अकबरपुरे का बस्ती दवाखाना हो या MD लैन का हो या इब्राहिम बाग के अंदर हो, इंशाल्लाह इस बस्ती दवाखाने के अंदर टेस्टिंग के लिए इंशाल्लाह अप्रूवल हो चुका, चंद वजूहात की वजह से रुका हुआ है। इंशाल्लाह फिर नुमाइंदगी कर और जिसको भी पॉजिटिव आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, चाहे पूरे मेडिसिन उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए मेडिसिन दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ फिर एक मरतबा मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वबा को काबू करने में नाकाम, मरीजों को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हर असम्बली हल्के में आइसोलेशन सेंटर्स के क़याम का मुतालबा, तेलंगाना कांग्रेस ने मंजूर की कई करारदादें। बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए वबा के दौरान सख्त फैसले लेने होंगे। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने ऑनलाइन चोटी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। विजयवाड़ा में कायम किए गए कोरोना केयर सेंटर में आतिशज़दगी, 10 से ज़ायद अफराद झुलस कर फौत। महलूकिन के विरसा को 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का वज़ीर आला जगन ने किया ऐलान। ममनुआ सिगरेट्स की फरोख्त के सिलसिले में एक शख्स गिरफ्तार, 16 लाख रुपये मालियती सिगरेट्स किए गए जब्त। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। आजमपुरे में एक मुश्तबा राउडी शीटर पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ चादरघाट पुलिस ने केस किया दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।